everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video we will start the exercise 4.2 of the question number 1 we will discuss here, right? So in the question number 1 we have to do, we have to find the roots of the quadratic equation by the factorization method. So as we have discussed that how to find the roots of a quadratic equation by factorization method, we have already discussed in the previous lecture. So if you have not watched that video, then please do watch that video. You can get that video in the playlist of the class 10 chapter 4 quadratic equation, right? So let's begin with the solutions. What the first question is, the first equation is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. Now by factorization, to find the root out means that we have to solve this. First we have to factorize this left hand side expression, okay, by splitting the middle term method. So here in the middle, what we have here, we have the minus 3x, right? So if you consider the steps, so what are the steps? So step number 1, I told you. The step number is, first of all, do the first and the last term product. So x square into minus 10, it gives you what? 10x square. Then in the step number 2, what we have to do, this product is 10x square. We have to split this number in such a way into product of two numbers such that their difference, यहाँ पे 10x square हमारे पास आया है, तो 10x square को हमें ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका डिफरेंस, कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है, डिफरेंस, माइनस साइन. सो 10x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल, एंड मिडिल टर्म क्या है हमारा, 3x है, राइट? तो हमारे पास एक ही ऐसा पेयर है. व्हाट इज दैट पेयर? 5x एंड दी 2x. क्योंकि 5x एंड 2x का डिफरेंस लोगे तो यू विल गेट 3x, और इन्हीं का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर मिल जाएगा. तो यानी कि हम 3x को कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 2x के डिफरेंस फॉर्म में. तो चलिए करते हैं हम इसी इक्वेशन को और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. तो x स्क्वायर माइनस 3x, आई एम गोइंग टू राइट इट एज 5x माइनस 2x minus 10 is equals to 0. Then open the bracket and then group the terms. So x square minus 5x plus 2x minus 10 is equals to 0. If you group the first two and the last two term, तो x आपके पास कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाला तो what you are left over with, x minus 5. Similarly in these two terms, what is the common? 2 is the common, so I am taking out common. So what is left over? X minus 5. Now again if you see here, this x minus 5 bracket is common in both the terms. So what I am taking? I am taking them common outside. So x minus 5 I am taking out common outside. So in the first term I am left over with the x and in the second with the plus 2. Clear? Now if you see here at this stage, this means what? It is the product of the two quantities which results what? 0. So this is possible if and only if either x minus 5 is 0 or x plus 2 is equals to 0, right? Or both are 0. So if we consider x minus 5 is equals to 0, then for what value this becomes 0? So at x is equals to 5. Clear? Similarly, if we consider this x plus 2 is equals to 0, then for what value of x this x plus 2 becomes 0? So x is equals to minus 2. So these two values which we got here of the x are called what? These are the roots of the given equation. So roots of given equation, which equation? That is x square minus 3x minus 10 is equals to 0 is 5 comma minus 2. So these are the two roots. Similarly, coming on the second part, second equation is what? 2x square plus x minus 6. 2x square plus x minus 6 is equals to 0. So if you see here the product, I am denoting the product with p, okay. So what is the product of the first and the last term? So it is the 2x square into 6 makes what? 12x square. Then you have to split this 12x square, you have to write this 12x square into two such numbers product such that their difference, because now here in the front of this constant term what sign we have? Minus sign. So that means हमें 12x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करके लिखना है जिसका प्रोडक्ट 12x स्क्वायर हो, बट
सम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो आप मिडिल टर्म में सम क्या है, सम को अगर हम ऐसे डिनोट करें तो इट इज व्हाट 1x, राइट। तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए आपका मिडिल टर्म, दैट मीन्स x के बराबर। चलो इसको मिडिल टर्म लिखो, नॉट डोंट राइट एस, राइट इट एज m, मिडिल टर्म, ओके, वी विल डिनोट दिस एज m। तो हमें 12x² को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करके लिखना है जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 12x² और जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म, दैट मीन्स 1x के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास एक ही पेयर है, व्हाट इज दैट पेयर, सो दैट पेयर इज 4x एंड दी 3x, क्योंकि 4x और 3x का अगर आप डिफरेंस लोगे तो क्या 1x होगा, यस, और इन्हीं दो का जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या 12x² बनेगा आपके पास, यस, डेफिनेटली बनेगा। क्लियर, ये हमारे पास 12x² में चलेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे जो मिडिल टर्म है हमारा 1x, उसको कैसे लिखेंगे, सो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू को ग्रुप किया, लास्ट टू को ग्रुप किया, फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो क्या लेफ्ट ओवर रहा x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला -3, तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर रहा x प्लस 2। अगर दोनों को ध्यान से देखें तो x प्लस 2 ब्रैकेट हमारा कॉमन है, तो x प्लस 2 आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट में 2x और सेकेंड में -3। Clear? Again, if you see at this stage, what is this? The product of two quantities are coming out what equal to 0. So what we have to do? Either we have to take x plus 2 is equals to 0, or we have to take what 2x minus 3 is equals to 0. तो ये हमारा 0 कब होगा, x is equals to -2 पे, ठीक है, और ये कब 0 होगा हमारा, x is equals to 3/2 पे। तो ये जो तो हमारे पास वैल्यू आई है, these are what, these are the two roots of the quadratic equation. Which quadratic equation? This 2x² plus x minus 6. Coming on the next sub part, the next sub part is under root 2 x² plus 7x plus 5 root 2 is equals to 0. हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगेन स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट निकालो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज रूट 2 x² इंटू 5 रूट ओवर 2। तो रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, तो 10x²। देन यहाँ पे जो हमारे पास मिडिल टर्म है, ठीक है, जो मिडिल टर्म है, व्हाट इज द मिडिल टर्म, सो मिडिल टर्म हेयर वी हैव व्हाट 7x। यानी कि अब हमें क्या करना है, 10x² को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करके लिखना है जिनका सम, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है, प्लस साइन, सो उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, तो सम तो इक्वल होना चाहिए किसके, 7x के इक्वल, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 10x² के इक्वल। तो हमारे पास ऐसा एक ही पेयर है, व्हाट इज दैट पेयर, 5x एंड दी 2x, क्योंकि अगर 5x 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10x², और जब इन्हीं का सम करोगे तो यू विल गेट दी 7x। तो चलो स्प्लिट करके लिखते हैं हम हमारी इसी गिवन इक्वेशन में 7x को 5x एंड 2x के फॉर्म में। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग हेयर, रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू को ग्रुप करोगे, लास्ट टू को ग्रुप करोगे, तो जो जो चीजें आप कॉमन निकाल सकते हो उसको बाहर कॉमन निकालिए। तो इफ यू सी द फर्स्ट ग्रुप, तो इसमें से आप सिर्फ x कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलो x को बाहर कॉमन निकाला, तो क्या बचा, रूट 2x प्लस 5। सिमिलरली लास्ट ये जो सेकेंड ग्रुप है, इसमें अगर आप देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, तो सी हेयर यू हैव 2 एंड हेयर यू हैव रूट ओवर 2, तो क्या दोनों में से आप प्लस रूट 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, यस। तो व्हाट वी आर टेकिंग कॉमन हेयर, प्लस रूट 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, रूट 2x, और यहाँ पे क्या बचा, 5 आपके पास बचा। तो अगर इस स्टेज पे देखें तो अगेन आपके पास ये जो ब्रैकेट है रूट 2x प्लस 5, ये क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन है तो जो कॉमन चीज होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सो आई एम टेकिंग द कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट इज रूट 2x प्लस 5। सो व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद हेयर विद द x एंड हेयर विद द रूट ओवर 2, so x plus root over 2. Clear? Now if you see here at this stage, by applying the zero product rule, because this says what, the product of two quantities coming out 0. So this is possible if and only if either the first bracket, that is root 2x plus 5 is equals to 0, or we can say that the second bracket, that is what,
x plus root over 2 is equals to 0. Now this expression will become 0 for what value of x? So for x is equals to minus 5 upon root over 2, and this expression will become equal to 0 for what value of x? That is x is equals to minus root over 2. So these are the two values which we are getting here of the variable x. These are what? These are the roots of the given equation. Coming on the next part is 2x square minus x plus 1 अपॉन इट. अभी तक हमने जितने भी इक्वेशंस किए उसमें हमारे पास सारे इंटीग्रल फॉर्म में कोफिशिएंट्स थे, राइट? ऑल आर इन द इंटीग्रल फॉर्म, राइट? मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट जैसा कुछ नहीं था. बट हेयर इन द कांस्टेंट पार्ट, इफ यू सी हियर द कांस्टेंट पार्ट इज व्हाट? गिविंग इन द फ्रैक्शन फॉर्म. तो देखो कैसे करना है. आप इस पूरी इक्वेशन का क्या ले लो? एलसीएम ले लो. तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इज कमिंग आउट व्हाट? 8. तो जब आप 8 एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर्स फर्स्ट और सेकंड टर्म के क्या जनरेट हो जाएंगे आपके पास? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? अब इस 8 को क्या करो? राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दो. राइट साइड पे जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा. तो क्या बना हमारे पास? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो इक्वेशन बनी आपके पास, इसको हमें डील करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने. नाउ अगेन इफ यू सी हियर प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज व्हाट? 16x स्क्वायर. 16x स्क्वायर इंटू 1 इज व्हाट? 16x स्क्वायर. अगर मिडिल टर्म को ध्यान से देखें तो बच्चों मिडिल टर्म क्या है आपके पास? 8x है. यानी कि हमें इस 16x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसका सम प्लस साइन है. तो सम तो क्या बनना चाहिए? मिडिल टर्म 8x के इक्वल होना चाहिए हमारा, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 16x स्क्वायर के. तो ऐसा हमारे पास एक ही पेयर है, दैट इज 4x. क्योंकि 4x इंटू 4x करोगे तो आपको 16x स्क्वायर मिलेगा, और 4x प्लस 4x करोगे तो 8x मिल जाएगा. तो चलो स्प्लिट करके लिखते हैं हमारे मिडिल टर्म को. कैसे लिखेंगे? 4x प्लस 4x. कौन सी इक्वेशन? इसको इक्वेशन नंबर 1 करो इसमें. सो इन इक्वेशन 1 if we write 16x square, 8x as 4x plus 4x, okay, and when you open this bracket, so 16x square minus 4x plus 1 is equals to 0. फर्स्ट टू और लास्ट टू को ग्रुप करेंगे तो फर्स्ट टू में आपके पास बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है 4x, तो क्या लेफ्ट ओवर रहा? 4x माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? सेकेंड ग्रुप में कुछ कॉमन नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकाल लो? -1 कॉमन निकालो. मैंने -1 क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि जो ब्रैकेट यहाँ पे जनरेट हुआ है एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट हमें यहाँ पे जनरेट करना है. तो टर्म्स तो हमारे पास सेम आ चुकी है, बट हेयर वी हैव प्लस 4x एंड हेयर वी हैव -4x. तो बेटर यही होगा कि आप -1 कॉमन निकालो. तो जब -1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा -1. क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो ब्रैकेट्स वापस से कॉमन आ चुके हैं. So take out the common these brackets outside. So 4x minus 1 I have taken common outside. So what we are left over with? Again 4x minus 1. So if you see this is what? This is nothing but 4x minus 1 का whole square. 4x minus 1 का whole square is equals to 0. And if you are taking the square root on both sides, so what you will get? 4x minus 1 is equals to 0. क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट तो क्या होगा? 0 ही होगा, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर पावर हट जाएगी. अब बताओ ये एक्सप्रेशन कौन सी x की वैल्यू के लिए 0 बनेगा? तो ऑब्वियस है x इज इक्वल्स टू 1/4 पे. तो इसमें हमारे पास क्या रूट आया? तो द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन इज 1/4. क्लियर? चलिए आते हैं लास्ट सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पे. तो लास्ट सब पार्ट क्या है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? नाउ अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो बेटा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हम किसको कंसिडर करते हैं? फर्स्ट एंड दी लास्ट टर्म. तो 100x स्क्वायर इंटू 1 मेक्स व्हाट? 100x स्क्वायर. सिमिलरली इफ यू सी द मिडिल टर्म, ठीक है, तो मिडिल टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन में? तो इट इज व्हाट? 20x. यानी कि 100x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में आपको स्प्लिट करना है जिसका सम कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का साइन है. तो यानी कि हमें 100x स्क्वायर को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है
जिनका सम तो आना चाहिए 20x और प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए 100x² के। तो ऐसा हमारे पास एक ही पेयर है, दैट इज व्हाट 10x एंड 10x, क्योंकि 10x इंटू 10x करोगे तो प्रोडक्ट 100x² बनेगा और सम करोगे तो 20x² बन जाएगा। यानी कि हम ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसमें 20x को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर ब्रैकेट को ओपन करो तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू को ग्रुप करो, लास्ट टू को ग्रुप करो। फर्स्ट को ग्रुप किया तो क्या कॉमन आया, 10x कॉमन आया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 10x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 आया। नाउ 10x माइनस 1 दोनों जगह ब्रैकेट कॉमन है तो क्या लेफ्ट ओवर बचा, 10x माइनस 1। अगेन अगर आप देखें तो दो ब्रैकेट सेम टाइप के हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो दैट मीन्स ये क्या है आपका 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप स्क्वायर रूट लिखें तो ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट व्हाट वी गेट, so अंडर रूट ऑफ 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो ये बच जाएगा आपका 10x माइनस 1 और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा। अब ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल कब बनेगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ x, सो ओनली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1/10। clear? So this is the root of this given equation. So this is what all about in my this video. Okay, so if you got the solution, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of the updates. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी एक्सरसाइज में जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज मेक नोट, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अब आपके जो कमिंग सिलेबस है, दैट मीन्स 2020 का जो सिलेबस हमें डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो डेली रूटीन बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हमारी एलिमिनेट हो गई हैं। क्लियर? सो अभी जो हम पूरा डिस्कशन करेंगे वो पूरा 2021 के सिलेबस को ध्यान में रख के हम डिस्कशन करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अ न्यू सब टॉपिक, दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और उसके बेसिस पे हमारे इस साल के सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड CBSE के सिलेबस में जो डिफाइन है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। क्लियर? So see you in my next video with the next topic, that is quadratic formula. Till then, bye bye, take care.